Today we are going to discuss the direct sequence spread spectrum communication system. स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन सिस्टम में हमने स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, पीएन सीक्वेंस के बारे में इंफॉर्मेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर लिए थे। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि in spread spectrum communication system we have two classification. First one is your direct sequence spread spectrum communication system, and second one is your frequency hopping spread spectrum communication system. So today we are going to discuss the direct sequence spread spectrum communication system. So according to the nomenclature here, we are going to spread the spectrum of the information bearing signal with the help of direct multiplication between the information signal with the PN sequence. As I already told you, if you are going to perform the spectrum spreading, we required a pseudo random sequence, because with the help of a pseudo random sequence, not only we are going to spread the bandwidth, as well as we are going to provide the random data at the output. So PN sequence is also used to encode your information. So in this technique, we are selecting a message signal. In the given literature, I am taking the message signal represented as a BT, that is a data sequence, and a PN sequence is represented by CT. Apply these two signals to the modulator. So here we are, I am using the concept of modulation to generate the direct sequence spread spectrum communication system. In a modulation technique, we have a message signal having a frequency of a kilohertz, and second one is your carrier signal having a frequency of megahertz. So when we are going to perform the modulation, we have to apply these two signals at the input of the product modulator and the generated modulated signal having a frequency in the range of megahertz. So what will happen in this scenario? In this scenario, finally, the modulated signal, the bandwidth of the modulated signal increases. It come into the range of your carrier signal. The similar phenomena happens here. If you are going to perform the multiplication of your information bearing digital data sequence BT with the generated PN sequence, the generated product signal will also have a frequency range in the range of your PN sequence. So the first read out this statement. So according to the statement, one method of widening the bandwidth of an information bearing data sequence involves the use of modulation. Clear? Specifically, a data sequence is used to modulate a wideband PN sequence, that is a pseudo noise sequence CT, by applying these two sequences to product modulator or multiplier. That means in this arrangement, we have a product modulator. One of the input at that product modulator is your information bearing data sequence, that is BT, which is the combination of 0 and 0101. And second one is your PT sequence, this PN sequence represented by CT having a wideband code. And after the apply these two signals at the input of product modulator, and it will generate a modulated signal. In this context, it is written as a product signal. So if the data sequence BT is a narrow band, definitely it will be a narrow band signal, and a PN sequence is a wide band sequence. Then multiplication of both produce a product signal represented by MT, whose spectrum is nearly same as PN sequence. Yani if your data sequence in the range of a kilohertz, you have a PN sequence in the range of megahertz. The multiplication of these two signals will produce a product signal having in the range of megahertz. Also, that product signal is also in random in nature. That randomization is occurred due to the involvement of PN sequence. So now come to the next page. The statement is, by multiplying the information bearing signal BT by the spreading code CT, that code is also called spreading code. Why? Because with the help of that code, we are going to spread the bandwidth of your information bearing signal BT. That's why the code is a spreading code. It's also known as a spreading code. So the statement is, by multiplying the information bearing signal BT by the spreading code CT, each information bit is chopped up into a small time increment. What is the meaning of chopped up? Chopped up means you have a certain bit interval in a data sequence. Suppose you have a combination of 10 10 10 in your data sequence. Each bit has some time interval, and that time interval is large enough compared to the time interval of a single bit or chip present in your PN sequence. So what will happen if you in a single bit of your data sequence contain a multiple bit of your PN sequence? So in a single bit of your data sequence contains the multiple bit of your PN sequence. So the multiple bits of PN sequence is inserted into the single bit of your data sequence. So what will happen? You are chopping the single bit of your
data sequence into the multiple bits of your PN sequence. So the statement is written here: by multiplying the information bearing signal BT by the spreading code CT, each information bit is chopped up into a small time increment, as illustrated in waveform. Waveform पे चलते हैं क्या? वेवफॉर्म में क्लियर है? जो फर्स्ट वेवफॉर्म आपको दिख रही है, दिस इज द डेटा सीक्वेंस BT having a time interval of TB representing two sequence 1 and 0. 1 is represented by +1, 0 is represented by -1. That is figure number A. That is represent the data sequence BT. Now multiply that data sequence BT with a spreading code CT. So in a spreading code CT, I am using a code. That code is 00111101. So if we are going to represent that sequence, 00 represented by -1, 111 represented by +1, again 0 is represented by -1, 1 is represented by +1. So the whole 7 bit are included in a single bit in time interval of your data sequence. So after the multiplication, what will happen? The generated product signal as shown in figure C represent the as shown in figure product signal MT shown in figure C. We have a signal which is similar to your spreading code signal CT when you have a data sequence having amplitude +1. When you have a amplitude of -1 in your data sequence, what will happen? The inversion phenomena will occur. Whole of the PN sequence will get inverted. See the figure very clearly. बहुत अच्छे से फिगर को देखिए. फिगर नंबर ए में आपके पास 1 को हमने +1 से रिप्रेजेंट किया, 0 को -1 से. हमने PN सीक्वेंस जो स्प्रेडिंग कोड सीक्वेंस है CT, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है 00111101. ये जो 7 बिट के कोड है, ये एक टाइम इंटरवल के अंदर आ रहे हैं. ये सारे के सारे एक ही टाइम इंटरवल के अंदर आ रहे हैं. तो जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन डेटा सीक्वेंस के साथ करेंगे तो क्या होगा आपका? क्योंकि डेटा सीक्वेंस +1 है, +1 में किसी का भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो अल्टीमेटली इट विल जनरेट द सेम डेटा सीक्वेंस. तो हम देख रहे हैं पूरे के पूरे टाइम इंटरवल TB के लिए जो आपका प्रोडक्ट सिग्नल था बिल्कुल आपके PN सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, CT सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है. 001111 0 and 1. जैसे ही आपका डेटा सीक्वेंस -1 होता है, तो डेटा सीक्वेंस जब -1 होगा और उसका मल्टीप्लिकेशन आप CT के साथ करेंगे, डॉटेड लाइन के बाद देखिए, डॉटेड लाइन के बाद आपका -1 हो गया. जैसे ही आप उसका स्प्रेडिंग कोड CT के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? अभी वो एम्पलीट्यूड तो 1 है, इसलिए स्ट्रेंथ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन -1 की मल्टीप्लिकेशन की वजह से इन्वर्जन हो जाएगा. जो माइनस में सिग्नल था CT में वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा. जाहिर सी बात है, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, माइनस इंटू प्लस विल बिकम माइनस. तो आप देख रहे हैं यहाँ का पूरा PN सीक्वेंस प्रोडक्ट सिग्नल में देखिए, डॉटेड लाइन के बाद पूरा का पूरा PN सीक्वेंस क्या हो गया है? इन्वर्ट हो गया है. तो इन अ सिमिलर मैनर वी गेट आवर प्रोडक्ट सिग्नल आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेटा सीक्वेंस एंड योर स्प्रेडिंग कोड सीक्वेंस. क्लियर? लिटरेचर में वापस चलते हैं. तो यहाँ पे स्टेटमेंट यही उन्होंने लिखी थी, बाय मल्टीप्लाइंग द इंफॉर्मेशन बियरिंग सिग्नल BT by the spreading code CT, each information bit is chopped up into a small time increment as illustrated in waveform, जो ऑलरेडी हमने देखा नीचे एक्सप्लेन किया जिसको. आगे कह रहे हैं these small time increment commonly referred as a chips. मैंने ऑलरेडी आपको डिक्टेट किया था, बताया था कि in a PN sequence each single entity of a bit is called chip and the duration of that chip is called chip duration. तो वही बात यहाँ पे इन्होंने कही. These small time increment representing a single bit in a PN sequence commonly referred as chips. So for a baseband transmission, मैंने already हम लोगों ने discuss किया था, there are two type of transmission. First one is your baseband transmission and second one is your band pass transmission. So baseband transmission are those transmission in which you are not using any kind of modulation technique, you are directly transmitting the message signal to the medium. In a passband or band pass communication system, we are using any type of modulation technique to communicate our message signal into the medium. So first I'm going to focus on the baseband transmission, in which I am not going to use any kind of modulation technique in this format. So for baseband transmitter, MT is the product signal which is obtained by the multiplication of your data sequence BT with the PN sequence CT. So it represents the equation number 1. Now that generated MT, that is the product signal, will propagate through the medium, and during the propagation of the medium, suppose that another user who want to intercept your information, it will create an interfering signal.
So what will happen at the receiving end? You have that product signal empty with the addition of an interfering signal IT. पर्पस क्या है स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन सिस्टम का? पर्पस ये था कि जब हमारा सिग्नल जनरेट हो रहा है तो उसके साथ इंटरफेरेंस ऐड हो रहा है. मैंने आपको बताया था इन नॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम we are trying to reduce the noise contaminated with the received signal. While in the case of spread spectrum communication system, noise is not the issue. Here the noise is replaced by the interference, either created by intentional or unintentional users. So here, when their product signal will propagate through the medium, an interfering signal represented by IT is added up with your product signal, and the generated signal RT received at the receiver end. तो हमारा पर्पस क्या है कि अभी जो RT है केवल empty नहीं रहा, RT में MT प्लस IT दोनों ऐड हो चुके हैं. हमें क्या पर्पस है? हमारे पर्पस ये करना है कि इस इंटरफेयरिंग सिग्नल को रिमूव करना है ताकि हम अपने ओरिजिनल डेटा सीक्वेंस BT को अचीव कर सकें. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे चलते हैं. लिखा है स्टेटमेंट, the received signal RT consists of a product signal MT and additive interference IT. So the resultant received signal will become RT is equal to MT plus IT. Put the value of MT from equation number 1. From equation number 1, MT is equal to C2 into PT. Put that value here. You will get the RT is equal to CT into BT plus IT, where CT is the PM sequence, BT is your information bearing data sequence, and IT is your interfering signal. Now, to recover the original message sequence BT, the received signal RT is multiplied or is applied to a demodulator that consists of a multiplier followed by low pass filter. आपको ध्यान होगा जब हम लोग डिस्कस करते थे डिमॉड्यूलेशन की टेक्निक एएम में, तो हमने वहां पे एक टेक्निक पढ़ी थी सिंक्रोनस डिटेक्शन और कोहेरेंट डिटेक्शन. सिंक्रोनस डिटेक्शन में क्या होता था? इन अ सिंक्रोनस डिटेक्शन वी आर गोइंग टू परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एग्जैक्ट रिप्लिका ऑफ द कैरियर सिग्नल यूज्ड एट द ट्रांसमीटर साइड इन अ फेज एंड फ्रीक्वेंसी. इससे क्या होता था कि जब हम कैरियर सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन करते थे तो हमारा मैसेज सिग्नल रिकवर होता था. उस मैसेज सिग्नल को लो पास फिल्टर से पास करके हम मैसेज सिग्नल को अचीव कर लेते थे, रिकवर कर लेते थे. तो यहाँ पर वही सेम फिनोमेना हम यूज करेंगे. यहाँ पे भी हम एक तरीके से सिंक्रोनस डिटेक्शन ही यूज कर रहे हैं. जो भी हमारा आरटी सीक्वेंस रिसीव हुआ है हम उसे अप्लाई करेंगे डीमॉड्यूलेटर पर. डीमॉड्यूलेटर में दो यूनिट लगी हुई है. फर्स्ट वन इज योर प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर और मल्टीप्लायर, एंड सेकंड one is your low pass filter. First of the input of that product modulator is your received signal RT, and second input is the exact replica of that PM sequence. मैंने आपको बताया था PM sequence is a encoded sequence. वो ऐसा encoded sequence है जिसकी information एक तो उस यूजर को होगी जो कि इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहा है, सेकंड उस यूजर को होगी जो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है. अगर वो PM सीक्वेंस उस रिसीवर के पास नहीं है तो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिकवर द retrace the recover the original data sequence. तो मैंने आपको पहले ही बताया, तो यही सेम फिनोमेना यहाँ पे यूज हो रही है. At the receiver end, we are going to perform the multiplication of the received signal RT with the same replica of the PM sequence. तो डायग्राम देखते हैं. यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है आपको रिसीवर यूनिट का, जहां पर हमारे पास रिसीव सिग्नल RT है. रिसीव सिग्नल RT का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम PM सीक्वेंस CT के साथ. तो CT पे क्या हो रहा है? आपका मल्टीप्लिकेशन के बाद एक सिग्नल जनरेट हो रहा है आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन. उस सिग्नल को हमने ZT से रिप्रेजेंट किया है. तो ZT एक्चुअली में होगा क्या? ZT will be the RT into CT. Now put the value of RT here. मैं नीचे ले चल रहा हूँ, नीचे क्लियर हो जाएगी पिक्चर. Here, the multiplier is supplied with a locally generated PM sequence. That is an exact replica of that used in the transmitter side. जैसा कि हम synchronous detection में use करते हैं. तो output ZT will be the CT into RT. CT is the exact replica of the PM sequence used at the transmitter side. RT is the received signal. Put the value of RT from equation number 2 here. You will get C square T BT plus CT into IT. So here your PM sequence CT is not only multiplied with the received signal but also multiplied with your interfering signal. So what will happen here? हमें तो पर्पस ये था कि मल्टीप्लिकेशन होना से हमारा पर्पस नहीं था. हमारा पर्पस ये था कि मल्टीप्लिकेशन के बाद ऐसा क्या हो गया कि इंटरफेरेंस रिमूव हो गया और हमारा मैसेज सिग्नल रिकवर हो गया. अब चलिए ध्यान देते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा है उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, समझ जाएंगे सारी चीजें. यहाँ पे लिखा है द स्प्रेडिंग कोड CT alternates between the level -1 and +1 and the alternation is destroyed when it is squared. जाहिर सी बात है, मैं CT को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा था? CT को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे सर 0 था तो -1 से और 1 था तो +1 से रिप्रेजेंट कर रहे थे. ठीक है, यानी आपके पास अगर कॉम्बिनेशन था 0 0 1 1 0 1 तो आप रिप्रेजेंट कर रहे थे डबल नेगेटिव, ट्रिपल पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, यानी 0 0 1 1 0 एंड 1.
अब सपोज करिए इसी सीटी सीक्वेंस का जो पीएम सीक्वेंस था दोबारा इसी सेम पीएम सीक्वेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है सर, जो डबल जीरो डबल नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा था, अगर उसका डबल जीरो डबल नेगेटिव से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. Negative into negative will become positive, positive into positive will become positive. So finally all the alternation occur due to the polarity of -1 +1 will vanish. If you are going to perform the square of any signal which having a dual polarity -1 +1, then it will generate the final positive polarity. The same phenomena happens here. The statement is the spreading code CT alternates between the level minus and +1. -1 is responsible for 0, +1 is responsible for binary 1, and the alternation is destroyed when it is squared. Clear है कि नहीं clear है? पीएम सीक्वेंस का उसी पीएम सीक्वेंस के साथ दोबारा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अल्टरनेशन खत्म हो जाएगा. -1 का -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन +1 होगा, +1 का +1 के साथ मल्टीप्लिकेशन अगेन +1 होगा. तो c square t will become 1. So what will happen? Equation number 3, ZT is equal to c square t will become 1. So ZT is equal to BT plus CT into IT. अब बात यह है कि CT का काम क्या था? सर CT का काम यह था कि रैंडम करना इंफॉर्मेशन को और उसकी बैंडविड्थ को स्प्रेड करना. अभी हमने जब यहाँ पर दोबारा मल्टीप्लिकेशन किया CT का, तो जो उस बैंडविड्थ को ब्रॉड कर रहा था, अब वो बैंडविड्थ को नैरो कर देगा क्योंकि CT तो खत्म हो गया. c स्क्वायर t करने के बाद उसकी जो कंडीशन थी वो तो वैनिश कर गई. बचा क्या हमारे पास आउटपुट पर? हमारे पास आउटपुट में बचा ZT is equal to BT plus CT into IT. तो सर यहाँ पर IT तो अब भी प्रेजेंट है. लो पास फिल्टर लगा के कैसे हम केवल BT को रिसीव करेंगे? IT तो अब भी कंटेमिनेटेड है, वो तो हटा नहीं है, बिल्कुल हट गया है. कैसे? IT क्या था? IT इंफॉर्मेशन बेयरिंग सिग्नल एक नैरो बैंड सिग्नल था, वो ब्रॉड बैंड सिग्नल नहीं था. समझिएगा बात को. ब्रॉडबैंड सिग्नल का मतलब क्या हुआ कि आपने जो इंफॉर्मेशन भेजी थी वो एक नैरो बैंड सिग्नल था. इंटरफेरेंस भी आप उसी नैरो बैंड में क्रिएट करेंगे तभी जाके वो आपके सिग्नल को डिस्टर्ब करेगा. आपने क्या किया? अपने सिग्नल जो नैरो बैंड था उससे पीएन सीक्वेंस को मल्टीप्लाई किया, वो क्या हो गया? आपका वाइड बैंड हो गया. जबकि जो इंटरफेयरिंग सिग्नल था वो अब भी नैरो बैंड पे ही बना रहा, वो आपके सिग्नल के साथ ट्रेवल कर रहा था. रिसीवर एंड पे आपने क्या किया? दोबारा उसी पीएन सीक्वेंस से मल्टीप्लाई किया. अभी जो आपका मैसेज सिग्नल जो ब्रॉड हो गया था, दोबारा मल्टीप्लिकेशन से वो क्या हो गया? नैरो हो गया, क्योंकि c स्क्वायर t क्या कर रहा था? वैनिश हो जा रहा था. तो BT सिग्नल क्या होगा आपका? नैरो हो गया. लेकिन इन जो इंटरफेयरिंग सिग्नल जो नैरो बैंड सिग्नल था उसमें तो मल्टीप्लिकेशन केवल एक ही बार होगा, वो भी रिसीवर एंड पे. जैसे ही वो आपके रिसीविंग एंड पर इंटरफेयरिंग सिग्नल IT पर CT का मल्टीप्लिकेशन होगा, वो क्या करेगा? उस नैरो बैंड के इंटरफेयरिंग सिग्नल को ब्रॉड कर देगा. और आपको पता है कि पावर इनटू बैंडविड्थ प्रोडक्ट इज कांस्टेंट. जैसे ही वो इंटरफेयरिंग सिग्नल की बैंडविड्थ को ब्रॉड करेगा, जब वो नैरो था तो उसका सिग्नल लेवल ज्यादा था. जैसे ही इसमें CT का मल्टीप्लिकेशन हुआ इंटरफेयरिंग सिग्नल में, उसकी बैंडविड्थ स्प्रेड की और उसका पावर लेवल क्या हो गया? लो हो गया. और आपके मैसेज सिग्नल के साथ उल्टी फिनोमेना हुई है. पहले आपका इंफॉर्मेशन सिग्नल नैरो था, आपने ट्रांसमीटर साइड पे CT से मल्टीप्लाई किया, वो सिग्नल ब्रॉडेंड हुआ, पावर कम हुआ. रिसीवर साइड पे दोबारा आपने CT से मल्टीप्लाई किया, सिग्नल क्या हुआ? आपका नैरो हुआ, पावर लेवल ज्यादा है. अभी रिसीवर एंड पे आपके मैसेज सिग्नल की पावर लेवल बहुत ज्यादा है और इंटरफेयरिंग सिग्नल की पावर लेवल बहुत कम है. जब इसे आप लो पास फिल्टर से पास करेंगे तो इतना ज्यादा मार्जिन होगा आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ में. आपका मैसेज सिग्नल की पावर लेवल यहाँ पर है, आपके इंटरफेयरिंग सिग्नल की पावर लेवल यहाँ पर है. आप एक लो पास फिल्टर लगाइए नैरो बैंड का, उस नैरो बैंड में इंटरफेयरिंग सिग्नल का पावर लेवल बहुत कम होगा, मैसेज सिग्नल का पावर लेवल बहुत ज्यादा होगा. उस थ्रेशोल्ड के साथ हम अपने इंफॉर्मेशन बेयरिंग सिग्नल को आराम से रिकवर कर लेंगे. दैट फिनोमेना इज कॉल्ड डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन प्रोसेस. समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो हियर हम कुछ कर नहीं रहे, हम वही मॉड्यूलेशन के अप्रोच को ही तो यूज किया हमने. हम इसको डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी आर गोइंग टू परफॉर्म द स्पेक्ट्रम स्प्रेडिंग with the direct multiplication of your information bearing signal with your PM sequence. That why the nomenclature is a direct sequence spread spectrum communication system. Clear है? यहाँ पे लिखा हुआ है by applying the multiplier output to a low pass filter with a bandwidth just large enough to accommodate the recovery of data signal BT, we get our रिजल्टेंट डेटा सिग्नल. क्योंकि इंटरफेयरिंग सिग्नल तो ब्रॉड हो चुका है, वो कहाँ आपके सिग्नल को इंटरफेयर कर पाएगा? उसकी स्ट्रेंथ तो कम हो चुकी है. आप एक लो पास फिल्टर लगाइए और आपका काम खत्म हो जाएगा. समझ में आया कि नहीं समझ में आई चीजें कैसे काम कर रहा है डायरेक्ट सीक्वेंस? तो बहुत सिंपल सी बात है. डायरेक्ट सीक्वेंस जब भी आएगा आपके पास ऊपर गिवन डायग्राम है.
ये डायग्राम ड्रॉ करना है। इस डायग्राम में बहुत साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर बीटी और सीटी का मल्टीप्लिकेशन होगा, प्रोडक्ट सिग्नल एमटी जनरेट होगा, एमटी सिग्नल प्रोपगेशन चैनल के थ्रू जब ट्रेवल होगा, यहाँ पर इंटरफेरेंस सिग्नल आईटी ऐड होगा, वो रिजल्टेंट रिसीव सिग्नल आरटी जनरेट करेगा, आरटी रिसीवर सिग्नल पे जाएगा, वहां हम दोबारा प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर की हेल्प से उसी सेम पीएन सीक्वेंस सीटी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रिजल्टेंट सिग्नल जेटी जनरेट होगा, फिर से हम लो पास फिल्टर से पास करके अपना आउटपुट सिग्नल बीटी रिकवर कर लेंगे। रिजल्टिंग वेवफॉर्म एंड इक्वेशन यहाँ पर आपकी गिवन है, जहाँ पर जेटी इज इक्वल टू सीटी इनटू आरटी, सी स्क्वायर टी इनटू बीटी एंड प्लस आई सीटी इनटू आईटी, सी स्क्वायर टी will become 1, जेटी is equal to bt plus ct into it. When will you pass that equation number 4 with a low pass filter, you will recover your message sequence. It is the simplest representation in a direct sequence spread spectrum signal, and that is enough. अगर एग्जाम में आपके डायरेक्ट सीक्वेंस स्पेक्ट्रम आता है, ये चीजें आप एक्सप्लेन कर देते हैं, तो ये आपके नंबर फुल है, बहुत चीजें आसान है, यहाँ पर कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने बात की थी आपकी बेसबैंड ट्रांसमिशन की, बेसबैंड ट्रांसमिशन जिसमें हम कोई मॉड्यूलेशन नहीं कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हम मॉड्यूलेशन भी इन्वॉल्व करते हैं डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम के साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बेसबैंड नहीं करते, उसे हम क्या कहते हैं, बैंड पास या पास बैंड कम्युनिकेशन करते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट वाला है उसमें यही सारी फिनोमेना एज इट इज ही है, बस उसमें क्या करेंगे, हम एक मॉड्यूलेशन और इन्वॉल्व कर देते हैं, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट सीक्वेंस बीपीएसके मॉड्यूलेशन। देखिए मैंने आपको बताया था, अभी तो मैंने अभी मॉड्यूलेशन डिस्कस नहीं किया है, लेकिन आप लोगों ने लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, तो आपको पता है देयर आर 3 टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, फेज शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग एंड फेज शिफ्टिंग। जस्ट लाइक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन। जब हम एनालॉग कम्युनिकेशन में एनालॉग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन डिस्कस कर रहे थे, वहां पे हमने ऑब्जर्व किया था कि ऑन द कंपैरिजन ऑफ द सिग्नल टू नॉइज रेशियो और फिगर ऑफ मेरिट, हमने ये बताया था कि फेज मॉड्यूलेशन सबसे ऑप्टिमम होता है, सबसे अच्छा आउटपुट फेज मॉड्यूलेशन के केस में मिलता है, फिगर ऑफ मेरिट सबसे अच्छी उसकी होती है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास एएसके है, एफएसके और पीएसके है, तो एएसके, एफएसके, पीएसके में वही प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो कि थर्ड यूनिट में है, जब वहां पहुंचेंगे देखेंगे, जब हमने कैलकुलेट किया तो हमने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर पीएसके के केस में सबसे मिनिमम होती है, इसीलिए इन तीनों में सबसे बेहतर मॉड्यूलेशन टेक्निक क्या होती है, फेज शिफ्टिंग होती है। इसीलिए डायरेक्ट सीक्वेंस जो परफॉर्म किया जाता है वो फेज शिफ्टिंग के साथ परफॉर्म किया जाता है। इसीलिए जो हम बेसबैंड ट्रांसमिशन की जगह पास बैंड या बैंड पास ट्रांसमिशन यूज करते हैं, उसमें हम ये सारा ऑपरेशन करते हैं, हम एक और ऑपरेशन ऐड कर देते हैं, जिसमें हम करते हैं क्या है, जो हमारा प्रोडक्ट सिग्नल एमटी जनरेट हो रहा था उसके हेल्प से हम एक और मॉड्यूलेशन इन्वॉल्व करते हैं, और वो मॉड्यूलेशन होता है आपका बीपीएस के मॉड्यूलेशन, तो वो भी हम यूज करते हैं, जैसे कि अभी आगे हम देख सकते हैं। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड कोहेरेंट बाइनरी फेज शिफ्टिंग। कोहेरेंट क्यों कहा, कोहेरेंट इसलिए कहा क्योंकि आपको ध्यान होगा जब हम पीएसके टेक्निक यूज, जब हम फेज मॉड्यूलेशन यूज करते थे या फिर पीएसके टेक्निक जब हम पढ़ेंगे, तो वहां पे भी जो डिटेक्शन यूज करेंगे वो कोहेरेंट डिटेक्शन ही टेक्निक होगी, कोहेरेंट या सिंक्रोनस डिटेक्शन टेक्निक, इन विच वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई the received signal with the same replica of the carrier signal which is used at the transmitter side. That's why the nomenclature is a direct sequence spread coherent binary phase shifting। यानी यहाँ पर हम डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम परफॉर्म कर रहे हैं, साथ में हम बीपीएस के भी इन्वॉल्व कर दे रहे हैं। कैसे हो रहा है वो सिंपल सा डायग्राम में फटाफट देखेंगे, चीजें से और समझ में आ जाएगी, कोई बड़ी चीज नहीं है। देखिए लिखा है टू प्रोवाइड द यूज ऑफ डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम इन बैंड पास चैनल we may incorporate coherent binary phase shifting, PSK कह लीजिए, BPSK कह लीजिए, एक ही चीज है दोनों, into the transmitter and receiver end। तो पहले ट्रांसमीटर का डायग्राम देखिए, पहला डायरेक्ट सीक्वेंस में हम क्या कर रहे थे, हमारे पास एक डेटा सीक्वेंस BT था, उसका हम पीएन सीक्वेंस CT से मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। वो सिग्नल क्या जनरेट कर रहा था, वो एमटी जनरेट कर रहा था। अभी वो एमटी क्या हुआ, प्रोडक्ट सिग्नल हुआ, अब हम उस एमटी को मैसेज सिग्नल की तरह ट्रीट करेंगे, और हम उस मैसेज सिग्नल की हेल्प से बीपीएस के मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे। बीपीएस के मॉड्यूलेशन परफॉर्म करना तो डेफिनेटली हमें कैरियर सिग्नल की रिक्वायरमेंट होगी, वो कैरियर सिग्नल को हम बीपीएस के मॉड्यूलेटर के इनपुट पे अप्लाई करेंगे, एमटी जो प्रोडक्ट सिग्नल जनरेट होगा उन दोनों की हेल्प से हम मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे, यू विल गेट योर मॉड्यूलेटेड सिग्नल एक्सटी। सिमिलरली रिसीवर साइड पे भी यही सेम ऑपरेशन होना है। रिसीवर साइड पे देखते हैं, अभी रिसीव्ड सिग्नल yt है, तो रिसीव्ड सिग्नल yt में क्या क्या होगा, वो xt होगा, और xt के साथ प्लस क्या होगा, इंटरफेरेंस सिग्नल होगा, so xt plus it होगा, तो yt is equal to xt plus it। नाउ परफॉर्म फर्स्ट डी स्प्रेडिंग। डी स्प्रेडिंग के लिए आपने क्या किया, सेम पीएन सीक्वेंस से मल्टीप्लिकेशन किया, सेम पीएन सीक्वेंस से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको मैसेज सीक्वेंस मिलेगा, नाउ उसका कोहेरेंट डिटेक्शन परफॉर्म कर दीजिए, यू विल गेट योर ओरिजिनल डेटा सीक्वेंस bt। तो यहाँ पर और कुछ नहीं किया गया, इन्होंने बस दो एक्स्ट्रा ब्लॉक ऐड कर दिए, एक बीपीएस के मॉड्यूलेशन, एक बीपीएस के डिटेक्शन। तो जब हम बैंड पास ट्रांसमिशन की बात करते हैं, बेसबैंड ट्रांसमिशन की बात करते हैं, तो वहां पे बीपीएस के मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन नहीं था,
क्योंकि वहां पर हम किसी तरीके का मॉड्यूलेशन इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे। लेकिन जब हम पास बैंड या बैंड पास ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो वहां पे हमें मॉड्यूलेशन इन्वॉल्व करना पड़ता है। और यहाँ पे वही आपको दिख रहा है कि वो सारा डायग्राम जो ऊपर बना हुआ था एज इट इज ही है, बस उसमें हमने ट्रांसमीटर साइड पे एक बीपीएस के मॉड्यूलेटर इन्वॉल्व कर दिया है और रिसीवर साइड पर हमने क्या किया है, बीपीएस के डिटेक्टर इन्वॉल्व कर दिया है। तो इसी स्टेटमेंट को उन्होंने नीचे लिख रखा है, देख लेते हैं क्या लिखा है। Transmitter involves two stages of modulation. The first stage consists of product modulator or multiplier in which the data sequence and PN sequence are multiplied to each other. लिखा है कि नहीं लिखा है? The transmitter involves two stages of modulation. The first stage consists of product modulator or multiplier with the data sequence and PN sequence as the input. The second stage consists of a BPSK modulator in which will generate the transmitted signal SC. Clear है? अगेन यहाँ पे चलते हैं, ऊपर की चीजें वही सेम चीजें, कोई बात नहीं। जो आगे लिखा हुआ है, the receiver also consists two stage of demodulation. The received signal YT and a locally generated replica of the PN sequence are applied to a multiplier. receiver पे भी वही सेम ऑपरेशन हो रहा है। हमने क्या किया, जो रिसीव्ड सिग्नल YT था उसका पहले हमने PN सीक्वेंस से मल्टीप्लिकेशन किया ताकि हम डी स्प्रेडिंग कर सके, अपने ओरिजिनल डेटा सीक्वेंस को रिकवर कर सके। नाउ the multiplication represent the first stage of demodulation. second stage आपको पता है BPS के मॉड्यूलेशन के, तो BPS के demodulation भी करना होगा। The second stage of demodulation consists of coherent detector, the output of which provide an estimate of the original data sequence. तो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, MT जो कि आपका BT और CT के मल्टीप्लिकेशन से मिला था वो यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। आपका कैरियर सिग्नल जो BPS के मॉड्यूलेटर के इनपुट पे अप्लाई किया जाएगा वो कैरियर सिग्नल है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो BPS के टेक्निक में क्या होता है, फेज शिफ्टिंग आपको ध्यान होगा कि जब सिग्नल की स्ट्रेंथ 1 थी, जब सिग्नल की स्ट्रेंथ 1 होती है तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है। जब सिग्नल 0 है तो उसके फेज में कोई चेंज नहीं होगा। अभी आप अगर देख सकते हैं डायरेक्ट सीक्वेंस बीपीएस के सिग्नल का डायग्राम है, कैरियर सिग्नल को देखिए और मैसेज सिग्नल एमटी को देखिए। जब एमटी निगेटिव था, निगेटिव का मतलब क्या रहा होगा, एमटी की वैल्यू 0 रही होगी। तो 0 जब बाइनरी 0 था उस समय आपके कैरियर के फेज में कोई चेंज नहीं दिख रहा है। जैसे ही डॉटेड लाइन देखिए, जैसे ही आपका -1 + 1 हुआ यानी 0 1 में कन्वर्ट हुआ, आपका कैरियर सिग्नल क्या हो रहा है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जा रहा है। 180 डिग्री से क्या हो रहा है, उसमें फेज चेंज जा रहा है। फिर वो 1 जब तक चलता रहा फेज उसी फॉर्म में चलता रहा। फिर डॉटेड लाइन से देखिए 1 क्या हो रहा है आपका 0 0 हो रहा है, फिर 180 डिग्री का फेज होगा और कैरियर फिर अपने ओरिजिनल फेज को रिकवर करेगा। तो फेज शिफ्टिंग में यही होता है कि आपका 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, 0 1 के अकॉर्डिंग अपना सिग्नल फेज चेंज करता रहेगा। जब बाइनरी डेटा 0 है कोई फेज में चेंज नहीं होगा, जब बाइनरी डेटा 1 है तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट चेंज होगा। तो ये पीएसके की टेक्निक थी, इसको इन्वॉल्व करके हम डायरेक्ट सीक्वेंस बीपीएस के सिग्नल ऑब्टेन करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि डायरेक्ट सीक्वेंस आप चाहे तो विदाउट मॉड्यूलेशन यूज कर लीजिए, विद मॉड्यूलेशन यूज कर लीजिए। बेसिक कंसेप्ट केवल इतना है, हमें पीएन सीक्वेंस से मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद रिसीवर एंड में भी उसी सेम पीएन सीक्वेंस से मल्टीप्लिकेशन करना है। केवल इन दो मल्टीप्लिकेशन से हमारा स्पेक्ट्रम की स्प्रेडिंग अचीव हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? नेक्स्ट टेक्निक हम कल डिस्कस करेंगे, फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। उससे पहले एक दो चीजें और हैं, न्यूमेरिकल्स हैं कुछ और कुछ पैरामीटर्स है डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम की, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं, उसको नोट्स को पढ़ लीजिए। बहुत सिंपल सी टेक्निक है डायरेक्ट सीक्वेंस, और ये मान के चलिए कि एग्जाम में 100% डायरेक्ट सीक्वेंस या फ्रीक्वेंसी होपिंग में से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। थैंक यू फॉर टुडे, आप लोग पढ़ाई करते रहिए।